The movies, which have earned over 3.8 बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबली, को अपनी इंस्पिरेशन कौन सी रियल लाइफ कार रेसर से मिली? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के बारे में। जहाँ नाइन्थ पार्ट फिलहाल अपने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है, चलिए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म की कहानी किस रियल लाइफ कार रेसर ग्रुप की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। चलिए शुरू करते हैं, आखिर फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों को शुरू कैसे किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निशी तनवर बॉलीग्राज स्टूडियो से आप सभी के साथ एक बार फिर से। तो बात करते हैं वन एंड ओनली मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि हम अब वेट कर रहे हैं फॉर द नाइन्थ एंड द सेकेंड लास्ट फिल्म इन द सीरीज एंड फॉर इट्स प्रॉपर एंडिंग। और फ्रेंचाइजी की इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट पीक पर है, जो उन्हें इसीलिए लास्ट और फाइनल चैप्टर की तरफ लेकर जाती है। द 19th एनिवर्सरी ऑफ द ओरिजिनल फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी रिवील्स कि ये सीरीज़ कितनी आगे बढ़ चुकी है, फ्रॉम स्ट्रीट रेसिंग टू क्रेजी इंटरनेशनल हाइस्ट। बहुत कम लोग जानते हैं कि द फिल्म फर्स्ट हैड इट्स रूट्स प्लांटेड फर्मली इन द वेरी रियल एंड वेरी इलीगल कल्चर ऑफ अंडरग्राउंड रेसिंग, especially the racing culture that dominated the uptown Manhattan streets in the 1990s, that a Vibe magazine article called Racer X brought to the light. ये आर्टिकल लिखा था कैन ली ने इन द मे 1998 इशू ऑफ वाइब। वाइब्स 1998 स्टोरी उन कुछ चीज़ों में से है जिसने मूवी को इंस्पायर किया। इट्स वेरी मच वर्थ रीड नियरली 20 years later also. The story follows driver Rafael Atavis and the world of illegal street racing, जिसे उसने अपना घर बना लिया। Although पहली फिल्म को आए almost 2 decades होने वाले हैं, still the scene is very familiar to us. A black Nissan 300ZX and a white Mitsubishi Starion pull on the starting line are shown in the film. As the sun shines on the nearby river, the sound of honking horns and the screaming drivers हमें आई ही रही होती है, और एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की with a blast of 2 engines reviving for takeoff. A Latin dude in a yellow shirt stands in the middle of highway and raises his hands. It sounds like a scene straight out of the start of any of the Fast and Furious films, which always kick off with a race. Racer X tells the story of street racer Rafael Atavis from Washington Heights and how do Atavis transitions into the sport of drag racing. Atavis, who was 30 at that time, was considered a leader in the growing mass of speed addicts जो जी रहे थे on the dark side of streets and race tracks around Manhattan. These were not the places that the Chevy and Mustang crowd hung out either. This was the place जहाँ हमें Japanese cars getting ready for races and big car import chain systems. The article also talks on the popularity of Japanese import car customization and the operations in the place to crack down on New York City street racing. ये हमें फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में काफ़ी एविडेंटली नज़र आता है। The excitement of going fast is like nothing else. It is not just the race. इन लोगों के लिए this is their drugs. This keeps them on fire to get ahead in life. Atavis carried himself with a swagger style that made him seem larger than life. Drag racing is what he explained. If you bring a knife and I bring a machine gun, you're dead. That's it. Big follower of TV's The Dukes of Hazzard, Atavis found inspiration in the stunts and perpetual evasion of the cops. उसने स्कूल से 16 साल की उम्र में ड्रॉप आउट कर लिया था in order to pursue cars without any distractions. He started to make his living by working in various garages. और वो बेहतर होता गया और अपने कार्स के शौक की तरफ बढ़ता गया. He was fast. Sounds familiar. हम सब जानते हैं this kind of racing wasn't going to escape the notice of the local police for long. और अगर ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, वी रियलाइज इट्स जस्ट इलीगल स्ट्रीट रेसिंग विच कुड ओनली टेक देम सो फार। और यही वो जगह है जहाँ एथेविस स्टोरी स्प्लिट्स ऑफ फ्रॉम द फास्ट एंड फ्यूरियस प्लॉट, और इसका रिजल्ट था ड्रैग वॉर, द ट्रिस्टेट्स फर्स्ट इम्पोर्ट स्ट्रीट ड्रैग हेल्ड एट द एटको रेसवे इन न्यू जर्सी. It was a legal and sanctioned event. Sponsors like Pennzoil and HKS USA were there. Magazines like Turbo and Super Street covered it, और thousands की गैदरिंग में लोग वहाँ देखने के लिए आए थे. ये चीज़ें जहाँ फिल्म हमें अलग नज़र आती है. रेस वॉज अगर एक सैंक्शनड इवेंट होता तो मेकर्स को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता,
Was anyone wearing helmets, fire suits, properly safety equipments? It didn't seem that way. It was just Johnny Tran hating on people and taking their pink slips. Atavis became the fastest Honda car racer on the East Coast that day with a record of 10.61 seconds. ये रिएक्शन ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रहा. तो ये जर्नी है कैसे एक इलीगल स्पोर्ट एमर्ज होता है अपने हीटअप स्पिरिट की वजह से एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इवेंट में, कुछ ऐसे. एटिविस जल्दी ही ऑटो इंडस्ट्री का एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है. रिपोर्टर्स लाइन अप टू शेक हिज हैंड और उनके इंटरव्यूज़ का वेट करते नजर आता है. ही नीडेड टू फॉलो द रेस सर्किट्स और इसीलिए उन्हें बड़े ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट मिलने लगे फॉर प्रमोटिंग द रेस कार्स. इफ एटिविस इज लकी ही विल हेड टू कैली where the big boys will be waiting to take a crack at him. It's the first time of a legal career in the growing in terms of cars, adrenaline charged sport of import drag racing. And it's making him misty-eyed today. I said I would do it and then I did it, Atavis says proudly in the article. 2001, the Fast and Furious followed an LAPD officer, Paul Walker, who went undercover into the world of illegal street racing to join the ranks with a well-established racer Vin Diesel and find the culprit at the center of an elaborate ongoing heist. The film, produced on an estimated $38 million budget, went on to make $207.3 million worldwide. This is and will be the eventually of all underground races of any kind, unless they die out or are stopped by the police first. It may look glamorous in the movies, but the real life consequences are too much to bear. Universal featured Racer X on a feature-loaded Fast and Furious disc that came out in 2002. Director Rob Cohen reveals he was inspired to make the film after hearing about the article and subsequently watching a race in Los Angeles. As a result, Cohen convinced Universal to make the film and the studio bought the rights to the film from Lee. Lee and Atavis reunited in 2015 for a sit-down with Vibe, and two said they never expected there to be 7 films, let alone one. और ये भी हमें नज़र आया इस फिल्म की इंस्पिरेशन में. चलिए देखते हैं इस फिल्म में हमने ओवर द ईयर्स कैसे स्टोरी अनफोल्ड होते हुए देखी है. ऑन अ सीरियस नोट, हॉलीवुड हैज़ सो फार प्रोड्यूस्ड मैनी मूवीज़ ऑन द जर्नी ऑफ कार रेसिंग. आर स्टोरीज जो कार्स के अराउंड रिवॉल्व होती है, जैसे द फर्स्ट ऑटो इन 1927, अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम हॉर्सेस टू कार्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड द रिफ्ट इट कॉजेज इन अ फैमिली, डेथ ड्राइव्स थ्रू 1935, Dodsworth 1936, The Magnificent Ambersons 1942, The Big Wheel, Need for Speed 2014, to name a few big successes of Hollywood. While फैंस के बीच फास्ट एंड फ्यूरियस काफ़ी पॉपुलर रही है और 2016 में फिल्म को पीपल्स चॉइस ऑफ अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म भी मिला है. फिल्म के 9th पार्ट का वेट बेसब्री से लोग कर रहे हैं. अब मैं आपको बताती हूँ टॉप 10 ऑटो थेफ्ट्स. अब आप सोचेंगे कि ऑटो थेफ्ट्स क्या हैं. मैं बताती हूँ. ऑटो थेफ्ट और मोटर व्हीकल थेफ्ट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, जैसा कि हम सबको पता ही है, इन विच द कल्प्रिट स्टील्स और अटेम्प्ट्स टू स्टील अ मोटर व्हीकल. United States and India lie amongst the most famous places where auto thefts have taken place. In 2012, an estimated number of 7,21,053 auto thefts took place. ऑल्सो बल्गेरिया अपने ऑटो थेफ्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है, विद एक्सपर्ट बल्गेरियन थीव्स. अब क्योंकि बात कर ही रहे हैं मोटर व्हीकल थेफ्ट्स की, तो जानते हैं उन 10 ऑटो थेफ्ट्स के बारे में जो सबसे क्रेजी रहे हैं अब तक. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी द रेसिंग कार्स, बुगाटी वेरन, ग्रैंड स्पोर्ट एंड पुलिस व्हीकल. It's a case of 2011 basically, which took place in Germany when 2 Polish guys were arrested after stealing 2 luxury cars in Switzerland. Now, those 2 guys were 24 and 27 years old, who stole a Bugatti Veyron Grand Sport Sang Blue and a BMW 750 Li in the direction of Poland, with the Bayern police chasing them from behind. इन सब में एक तीसरा इंसान भी सीन में होता है, who has abandoned his stolen Ferrari in Fürth, a city in Germany. वो प्रेशियस कार असल में एक स्विस बिजनेसमैन की थी एंड उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी यूरो 1.5 मिलियन, यानी कि इंडियन रुपी में बात करें तो 12 करोड़ से भी ज़्यादा. Silver blue Bugatti and a black BMW sedan. Both had Swiss nameplates and were sported in Pegnitz, a town in Germany which was heading towards Berlin. अब इन सारी चीज़ों से तो ये पता लगाया जा ही सकता है कि वो तीनों गाड़ियाँ यानी कि BMW, Bugatti और Ferrari 599 GTB
चोरी हुई थी संडे मॉर्निंग को ओबेरिडन, स्विट्जरलैंड में ड्यूरिंग अ बर्गलरी coordinated by Operation Center of Oberfranken and assisted by a helicopter. The chase of the 1001 and 407 horsepower luxury cars was started. So the driver who stole Bugatti sports car stopped it on the highway close to Walsbach, and then he jumped out of the car and fled on foot, crossing the central guardrails and all the three lanes which were present in the opposite direction. पर मजाल है कि पुलिस ऑफिसर्स इतनी आसानी से उसे जाने देते. They didn't give up and pursued the man into the open terrain. And finally, they succeeded to catch a 27-year-old man who originally belonged to Danska city present in northern Poland. In the meantime, the forces kept their search on for the black BMW 7 Series on the B2 near Kreuben, a town in Germany. 24-year-old driver from Elblag very quickly realized the futility of his situation. Given the police presence that had surrounded him, he was arrested without resistance and large BMW sedan was assured. पर Ferrari 599 GT मंडे तक मिसिंग ही रही. On Tuesday morning, somebody noticed an abandoned black sports car which had Swiss license plate was standing in the vicinity of the railway station of Fürth. फिर क्या था, पुलिस गई और उसने वो ब्लैक फरारी को वहाँ से उठा लिया. बट द मेन क्वेश्चन ऑफ द होल सीन रिमेन्ड अनसॉल्व्ड कि आखिर वो गाड़ी चोरी करी किसने थी. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट फाइंड द थीफ. All in all, those two guys who were 24 and 27 years old were sent to detention centers, and those two stylish cars were handed over to the authorities of Switzerland. The second one I'm talking about is some humanity in the style of Mission Impossible. Generally 19 साल की उम्र को इतना कुछ खास कंसिडर किया नहीं जाता है, पर कोई कोई इस उम्र में ऐसे ऐसे काम कर देता है ना कि पूछिए ही मत. Yes, you got that right. I'm talking about a person who stole a car at the age of 19. और वो भी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं. He stole a Lamborghini Gallardo. This expensive dream car for many belonged to a celebrity chef, or I may say a human cheese fry, Guy Fieri. This incident took place in 2011 while Fieri became a victim of this grand theft when his car was stolen from San Francisco car dealership. This famous celebrity chef, who is known for his food and enthusiasm towards it, was surprised having this happen to him. But sooner his car, whose value was approx $2 lakh, was found in a Bay Area storage unit, which belonged to an insane teenager. Later, that teenager, Max Wade, was sentenced to life prison, not just because he stole a Lamborghini Gallardo, but also because he shot one of his fellow teens and his girlfriend. The third one I'm talking about is the story of Ferrari F50. Tom Baker, an airline pilot who had his immense love for many things including cars, especially Ferrari, always knew that he couldn't afford own one. अब लेकिन शौक भी है तो उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी भी ले रखी है खुद ही. So what else does someone expect after this except for a theft? So he decided to live his dream in an illegal way and started with small auto thefts. His big one was when he stole a Ferrari F50 from Pennsylvania in 2003. 5 years later, the car was stopped in 2008 when FBI agents seized it from the Kentucky emergency room. But prior to Baker's sentencing, 2 FBI agents ran the car into a tree, totaling it. अब बात बेकर पर से हटकर FBI agents पर आ गई when the motor insurance group asked for money, questioning the FBI agents. The fourth one is the famous Bulgarian car thieves. Bulgaria is a place जहाँ पर stolen गाड़ियाँ लाई जाती हैं, उनको रिपेयर किया जाता है डेंटिंग पेंटिंग करके. They are transformed with a new number plate and every minute detail to look like a new one. That's the reason why a bunch of people are also famous in here for auto thefts, known as Bulgarian car thieves. They're also recognized as world's best and fastest thieves who actually take just 10 to 20 seconds to unlock a car. They proceeded with their thefts after organizing sex parties in France and Spain, thereby stealing the vehicles of the guests. They fit GPS tracker in that luxurious car, make a copy of the key, sell it to the drug traffickers, and after getting it loaded, they proceed to nick the car and goods. पुलिस ये भी मानती है कि डेविड बेकम की डबल आर्मर प्लेटेड BMW भी इन्हीं बल्गेरियन थीव्स ने चोरी की थी. Fifth, internet found the stolen Beetle. A man got his Beetle back by the tweets and social media voices raised by the people. His VW Beetle, which was with him since 20 years, was stolen.
and he cried his heart out throughout the internet, making it rather a public event. After several days, when he begged for help, one of the very genuine people posted 4 photographs of that car, but unfortunately unaddressed. Sooner or later, the cops helped him find it. Through the beetle had its eye gouged out, its hood and deck lid battered, its bumpers mangled, roof rack stolen, radio gone, and the entire engine brutally extracted. Still, he could only think about how amazing and wonderful people are here on the internet, which helped him find his car. Internet में ताकत तो होती ही है was all that he could imagine. Next is 1.6 million US dollar car theft ring. The auto theft ring, which operated out of the city of Hamilton, targeted mainly rental cars, police alleged. 4 people were charged after police busted an alleged $1.6 million car theft ring that spanned across southern Ontario. They used the stolen cars to export them out of the Canada with high duties on them. The next one I'm talking about is stolen and sold in the same town. A DeLorean was stolen from the owner's yard in Morgan Hills. It was a newly bought DeLorean as it had approximately only 636 miles run on it. And unlike most other DeLoreans, it didn't have a stainless finish, rather a black paint, which made it to be highly identifiable and distinctive one. जिस इंसान ने इस गाड़ी को चोरी किया था उसने एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराया था विच हैड द एग्जैक्ट सेम डिटेल्स एज दिस वन. A man who knew that the same car was stolen contacted this guy to buy this one. जब वो गया तो उसकी नज़र पड़ी उन 3 digits पर which said 636 miles, and this made him sure that the car which he had in front of him was the same DeLorean which was stolen. The 8th one is Aston Martin DB5 theft. The famous Aston Martin DB5, which has always earned the title of the most famous car of this world, was featured in Goldfinger, the famous movie. तभी से ये उस फिल्म की एक प्रोमिनेंट फीचर्स में से एक बन गई थी और साथ ही में इसको ड्रीम कार का स्टेटस भी मिल चुका था. बट आफ्टर दैट इट सडनली वेंट मिसिंग. DB5 was turned into DB216/1 and was later known as the Effects car, which was stolen in 1997 from an airport hangar in Florida, where it was stored. Since then, it has been years that no one has really seen that car, and also it was then believed that people lost their dream car forever. The 9th one is car theft for airbags. A reputed Genoese crime family who had murder charges on them was held for car thefts as well. They would accept orders for car parts from body shops throughout the city, then direct a crew of thieves to steal a specific type of vehicle and accept a vehicle from owners who were looking to report it stolen to collect the insurance money. The vehicles were dismantled at the yard and the parts resold to body shops who charged unsuspecting customers full retail prices. This family was actually famous for stealing cars and then selling their airbags at much higher prices than expected. The last one I'm talking about is police SUV stolen. A 31-year-old guy named Michael John stole Charles Parish Sheriff's Office SUV and then made them chase him to New Orleans. Michael was caught when he walked into a convenience store in New Orleans, जिस पे डिटेक्टिव्स ने पहले से ही नज़र रख रखी थी. Deputies said that they were sent to that location in order to find a suspicious car where they found John, who was shooting up heroin while sitting in the police SUV. हालांकि हर चोर की तरह उसने भी भागने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट इन हैंडकफ्ड. लेटर ऑन उसको डिटेन कर दिया गया विद द चार्जेस ऑफ मोटो थेफ्ट. तो ये थे हमारे टॉप 10 ऑटो थेफ्ट्स. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बताने कि टॉप 10 रेसिंग कार इवेंट्स कौन से हैं वर्ल्ड में. तो सबसे पहला है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स F1, 1929 से चली आ रही मोंटे कार्लो की सड़कों पर फॉर्मूला. मोनाको ग्रैंड प्रिक्स शुरुआत से ही अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हुए आ रहा है. ये एक ऐसा इवेंट है जो हर साल क्लब डी मोनाको ऑर्गेनाइज कराता आ रहा है. ये रैली या रेसिंग इवेंट फ्रेंच रिवियरा प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको और साउथ ईस्ट फ्रांस में टेक प्लेस करती है. अगर रेसिंग के नज़रिए से देखा जाए तो इस रेसिंग इवेंट में सब कुछ मिलेगा जो ज़रूरी है. स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ऐसी चीज़ें अवेलेबल रहती है जो शायद प्रिडिक्ट भी नहीं की जा सके, जिसमें मेनली ड्राई टर्मैक, वेट टर्मैक, स्नो और आइस, ये सब चीज़ें होती हैं.
नेक्स्ट इज इंडियानापोलिस 500। इसके पहले रेस 1911 में हुई थी। ये रेसिंग का एक ऐसा फॉर्म है जो अमेरिकन ओपन व्हील रेसिंग को डिपिक्ट करता है और बिजनेस इनसाइडर का इस रेस के लिए कहना है कि फास्टेस्ट रेसिंग सीरीज है ये अमेरिका में। इस रेस में ऑल टोटल 200 लैप्स होते हैं जिसमें काउंटर क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे के अराउंड। Winners traditionally kiss the brick finish line as the Venus was one paved in all the bricks and also is presented with a gift which is a bottle of milk. Third is Pikes Peak Hill Climb. 1916 में इसका पहला रेस इवेंट हुआ था। इसे रेस ऑफ द क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहीं सारे होने वाली हेल्थ में सबसे बड़ा हिल क्लाइंब रेस है। ये सेकेंड ओल्डेस्ट मोटर स्पोर्ट्स रेस है जो यूएस में हुई थी और एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन भी थी। 12.42 माइल कोर्स विद 156 टर्न्स दैट बिगिंस एट 9,390 फीट एंड फिनिशेस एट द 14,115 फुट समिट ऑफ अमेरिकाज माउंटेन पाइक्स पीक। ब्रॉडमूर पाइक्स पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब जैसा और कोई रेस कोर्स नहीं है पूरी दुनिया में, इसलिए उन रेस क्रूज को बहुत अट्रैक्ट करता है जो अच्छा अमाउंट स्पेंड करने को तैयार हैं और कई महीने प्रिपरेशन करने के लिए ताकि वो किंग ऑफ माउंटेन कहला सकें। इसे इनफैक्ट द डेविल्स प्लेग्राउंड भी बोला जाता है और इस रेस को जीतने के लिए काफ़ी डेडिकेशन और गट्स की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज़ 24 आवर्स ऑफ ली मैन्स। 1923 में 24 आवर्स ऑफ ली मैन्स पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था। इसे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ एंड्योरेंस एंड एफिशिएंसी भी कहा जाता है। ये रेस जून में होती है और मिड आफ्टरनून के वक्त स्टार्ट होती है और फिनिश अगले दिन उसी वक्त होती है जब स्टार्ट हुई थी। ये एक 24 आवर कॉम्पिटिशन है जिसमें ड्राइवर्स को 3 बार रेस्ट लेने का ऑप्शन होता है जिसमें वो खा पी कर और रेस्ट ले सकता है। इस रेस में 3,110 माइल्स कवर करने होते हैं 24 आवर्स में। नेक्स्ट वन इज़ डायटोना 500। डायटोना 500 NASCAR के शानदार कार रेसिंग इवेंट्स में से एक है। ये उस साल हुई रेसेस में से पहली रेस है जो सीरीज़ में गिनी जाती है। डायटोना 500 सबसे पहली बार 1959 में हुआ था जो NASCAR के बर्थ प्लेस पर लोकेटेड है, डायटोना बीच, फ्लोरिडा। ये रेस 500 माइल्स लंबी है और फेब के एंड में होती है। The Daytona 500 is one of the 4 restricted plate races on NASCAR's calendar. Given both safety and competitive concerns for the long track and its famous 31-degree banking in its 4 corners. इस रेस के 7 बार रिचर्ड पेटी विनर रह चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग। स्ट्रीट रेसिंग काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है और ये बहुत पॉपुलर भी है मियामी, यूएस और जापान में। इन जगहों पर ऐसी रेसेस के लिए हिडन नेम्स और लोकेशंस यूज़ किए भी जाते हैं। पकड़े जाने के चांसेस भी रहते हैं बट स्टिल हिडन रेसर्स को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। द नेक्स्ट वन इज़ जापान अंडरग्राउंड रेसिंग। जापान अपनी अंडरग्राउंड रेसिंग के कल्चर के लिए फेमस तो है ही, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़े फेमस पर्सनालिटी है जिसने इस कल्चर को प्रमोट किया वो है कैची टूशिया। ये एक फिनोमिनल रेसर है जिन्होंने 24 आवर्स ली मैन्स 2 बार जीती है। इन्हें ड्रिफ्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। द नंबर 1 जापानीज़ रेसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ टग रेसिंग। टग जापानीज़ में ड्रिफ्ट को बोला जाता है। ये बेसिकली माउंटेन पास के लिए यूज़ होता है। ड्रिफ्ट रेसिंग मिनी माउंटेन प्रैक्टिस की जाती है और उसके बाद सिटीज़ में जो माउंटेन्स हैं जापान में टग रेसिंग के लिए जाने जाते हैं वो हैं डेल ड्यूइस हाईवे कैलिफोर्निया, गेंटिंग सम्फा, मलेशिया हाईवे 35 और माउंट हर्नुआ जो हंशु नाम से एक आइलैंड पर है। टग रेस कार सिर्फ रात में 2 गाड़ियों के बीच होता है जिसमें 2 मेन रूल्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट कैट एंड माउस एंड द सेकेंड वन इज़ इनिशियल डी। कैट एंड माउस रूल ये कहता है कि माउस है वो आगे रहता है और कैट पीछे रहता है। अगर माउस और कैट के बीच में बहुत डिस्टेंस हो जाती है तो माउस जीत जाता है। इनिशियल डी रूल में होता है कि अगर कोई भी रेसर क्रैश कर जाता है रेस के दौरान लाइन क्रॉस करने से पहले तो वो हार जाता है। द सेकेंड वन इज़ द रूलैट जोकू। रूलैट जोकू एक टर्म है जो रूलैट ट्राइब को डिनोट करने के लिए जापान में यूज़ होती है। इसका मतलब होता है स्ट्रीट रेसर्स जो अपनी स्ट्रीट रेसिंग टोक्यो के इनर सिटी हाईवेज पर करते हैं। ये मेनली C1 लूप और वैंगन लाइन में ही स्ट्रीट रेसिंग करते हैं। इस ग्रुप की मेंबर्स पहले मोटर बाइक रेसर्स थे, फिर उन्होंने अपने रेसिंग टैलेंट को आगे बढ़ाया और ड्रिफ्ट रेसिंग पर आए। उसके बाद उन्होंने कार में रेसिंग स्टार्ट की।
इस ग्रुप के मेंबर्स सिर्फ होंडा सिविक में ही रेसिंग करते हैं और अपनी स्पेशल आइडेंटिटी के लिए स्टिकर भी लगाते हैं अपनी गाड़ियों पर। इस ग्रुप का कल्चर तब तक प्रिजर्व रहेगा जब तक होंडा सिविक रहेगी। द नेक्स्ट वन इज मियामी अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग। द कांजो जोकू, इस ग्रुप को अपना नाम मिला उस स्ट्रीट से जो इनका मेन रूट है। ये एक 4.77 माइल लंबा लूप है जो हाईवेज को कनेक्ट करता है, रनिंग राइट थ्रू द सिटी ऑफ ओसाका। बहुत से स्ट्रीट रेसर्स निसान जीटीआर और टोयोटा सुपरा में रेस करते हैं, पर ये लोग भी सिविक ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। द फोर्थ वन इज शिकागोज रेसिंग कम्युनिटी। शिकागो एक ऐसी जगह है जो बहुत से कार रेसर एंथुजियास्ट को प्रमोट करती है। स्पोर्टिंग अमेरिकन क्लासिक्स, सुपर कार्स एंड इवन जंकर रेसर्स आर ड्रॉन टू शिकागोज फेमस लोअर वैकर ड्राइव। और इसमें काफ़ी कार मूवी सीन्स भी शूट हुए हैं, जैसे कि डार्क नाइट, बैटमैन 2008, द ब्लूज ब्रदर्स 1980, द वांटेड 2008। Lower Wacker Drive is the epicenter of the underground Chicago street racing community. The last one is Los Angeles Car Club. लॉस एंजलिस एक बहुत अच्छी जगह है जो कार क्लब्स के लिए जानी जाती है। साउथ एलए अथॉरिटीज़ का कहना है कि लास्ट दिसंबर लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल said an ambulance responding to an emergency call was also attacked by racers at a street takeover in which racers block off an intersection or stretch of road in order to perform burnouts and other stunts. कुछ साल पहले तक ये स्ट्रीट रेसर्स सब कुछ करते थे। पुलिस को अवॉइड करने के लिए इनका एक्ट बहुत ज़्यादा आउटरेजियस भी था। अब बात करते हैं टॉप 20 फास्टेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड की। कई सालों से ऑटो इंजीनियर्स अपनी मैन्युफैक्चर्ड कार्स में स्पीड, ब्रेक सिस्टम और कई अलग अलग सिस्टम्स और फीचर्स में इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं और पिछले 10 साल में कार्स और ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी हो चुकी हैं। सभी सिस्टम्स की प्रोग्रेस की जाती है, लेकिन मेन फीचर जो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोग्रेसिव बन चुकी है वो है स्पीड। कार्स मैन्युफैक्चरिंग के मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा स्पीड हो और कम समय में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। लेकिन आजकल के ट्रैफिक और भागम दौड़ में चाहे आप कितनी तेज़ गाड़ी क्यों ना चलाएं, ट्रैफिक में सभी गाड़ियों को रुकना तो पड़ता ही है। लेकिन कई सारे रेसिंग और कार स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसी गाड़ियां बनी हैं जिसका स्पीड एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी से बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये गाड़ियां नॉर्मल पर्पसेस के लिए नहीं होती है, लेकिन इन गाड़ियों में कुछ अलग ही बात है। ये फास्ट स्पीड वाली गाड़ियां बहुत महंगी और अलग होती हैं। कौन सी वो गाड़ियां हैं जो फास्टेस्ट स्पीड के लिस्ट में आती हैं? फास्टेस्ट स्पीड मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना? तो सबसे पहले बात करते हैं 2004 कॉनिग्सगैग CCR। ये गाड़ी 2004 में लॉन्च हुई थी और उस समय की वो कॉनिग्सगैग की सबसे पावरफुल वर्जन मानी जाती थी। इस गाड़ी की कीमत है 12 करोड़ और ये फास्टेस्ट गाड़ियों में से एक है। ये गाड़ी 0 to 60 mph के लिए सिर्फ 3.2 सेकेंड्स का टाइम लेती है। इस गाड़ी का स्पीड 242 mph है। ये स्वीडन देश से ओरिजिनली बनाई गई है और इसकी कमाल के फीचर्स ये आज भी बहुत माइंड ब्लोइंग कार सीरीज में कहलाती है। दूसरी है 2009 कॉनिग्सगैग CCX। ये गाड़ी 2009 में मैन्युफैक्चर हुई थी। इसको सुपर कार बोला जाता था क्योंकि इसकी फास्ट स्पीड का कोई बीट नहीं कर पाया था। इसमें X ये लेटर इस गाड़ी के प्रीवियस वर्जन के क्रिएशन की 10th एनिवर्सरी को डिनोट करता है। इस गाड़ी का स्पीड है 245 mph। इस गाड़ी को अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया था। इसका भी ओरिजिन स्वीडन है। इसको भी 0 to 60 mph स्पीड कवर करने के लिए सिर्फ 3.2 सेकेंड्स ही लगते हैं, लेकिन अपने प्रीवियस वर्जन से इसकी पावर कहीं ज़्यादा है। The third one is 2017 W Motors Finnair Super Sport। ये गाड़ी UAE बेस्ड है। इस गाड़ी का स्पीड है 246 mph और इस गाड़ी ने दुबई के 2015 दुबई मोटर शो में ही सबका दिल जीत लिया था। तब से सोशल मीडिया पर इस गाड़ी के बारे में काफ़ी बहुत ज़्यादा हाइप्ड ऑडियंस है और रिव्यूअर्स बात भी कर रहे हैं। इस गाड़ी का 0 to 60 mph कवर करने का टाइम सबसे कम है, सिर्फ 2.5 सेकेंड्स। ये एक लोकली बिल्ड सुपर कार मानी जाती है। इस गाड़ी की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि इस गाड़ी को अर्ली प्रोडक्शन 1/4 बढ़ाना भी पड़ गया था। फोर्थ वन इज 2005 सलीन S7 ट्विन टर्बो। ये कार 100% हैंड बिल्ड है। इस कार की स्पीड है 248 एम्पियर जो उस समय लॉन्च हुए सारे कार्स से ज़्यादा थी। इसको USA में बनाया गया था और ये एक जानी मानी स्पोर्ट्स कार है।
इसका प्रोडक्शन 2000 से लेकर 2009 तक ही था। इसका 0 to 60 एमपीएच परफॉर्मेंस है 2.7 सेकेंड्स में। ये एक बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन कार है जिसके बटरफ्लाई डोर्स भी हैं। फिफ्थ वन इज़ 2020 एस्टन मार्टिन वैल्क्यूरी। ये एक ऐसी कार है जो ब्रिटिश ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई है और इसका स्पीड 250 एमपीएच क्लेम किया जाता है। इसका 0 to 60 एमपीएच परफॉर्मेंस तो सबसे कम टाइम का है, सिर्फ 2.3 सेकेंड्स। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इस कार की प्राइस है अराउंड 20 करोड़। जी हाँ, इस गाड़ी को कई अलग नाम भी हैं जैसे नेब्यूला, AMRB 001 एट्सेट्रा। सिक्स्थ कार है 2020 मैकलैरन स्पीडटेल। ये गाड़ी एक लिमिटेड प्रोडक्शन सीरीज़ का हिस्सा है। ये मैकलैरन अल्टीमेट सीरीज़ का 4th एडिशन है। इसका ओरिजिन भी इंग्लैंड ही है। मैकलैरेंस के 35 इयर्स की हिस्ट्री में वो ऑटोमेकर हमेशा वक्त के साथ साथ अपने कार्स बनाने की प्रोग्रेस बढ़ाता गया और यही करते करते अब तक का सारा इनोवेशन उन्होंने स्पीडटेल में लगा दिया। ये गाड़ी 2018 में रिलीज़ की गई थी। इस गाड़ी की प्राइस है $22,40,000 जो सबके होश उड़ा देती है। सेवेंथ कार है 2020 टेस्ला रोडस्टर। ये गाड़ी एक और इलेक्ट्रिक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है जो 2 सीटर डिज़ाइन के साथ बनाई है। इस गाड़ी का स्पीड है 250 एमपीएच जो रिसेंटली क्लेम किया गया है। इसका 0-60 एमपीएच कवर करने का टाइम तो सिर्फ 1.9 सेकेंड्स है जो कि इसको बनाता है बहुत ज़्यादा पावरफुल और फास्ट। ये ओरिजिनली अमेरिका से है और इसकी प्राइस है $250,000। एट्थ गाड़ी है 1993 पोर्शे 962 ले मैंस ड्यूरेशन। ये गाड़ी काफ़ी पुराने प्रोडक्शन की है लेकिन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल प्रोग्रेस से इसके नए नए वर्जन्स भी बनाए गए हैं। इस गाड़ी को 1993 में फर्स्ट रिलीज़ किया गया था। इसका प्रोडक्शन 1997 तक चला और उस टाइम पीरियड में उन्होंने 13 की कार्स मैन्युफैक्चर की जो इस कार को बहुत रेयर बनाती है। ये भी एक जानी मानी स्पोर्ट्स और रेसिंग कार है और इसका स्पीड 251 एमपीएच है। ये ओरिजिनली जर्मनी की है। नाइन्थ कार है 2005 बुगाटी वेरन। ये एक मिड इंजन स्पोर्ट्स कार है। इस गाड़ी ने तो रिलीज़ होते ही एक न्यू लेवल ऑफ एक्सेलेंस दिखा दिया। इसका स्पीड है 253 एम्पियर जो कई सारे बड़े स्पोर्ट्स कार को बीट कर देती है। इस कार की कीमत 11 करोड़ है। इसको कई अवार्ड्स मिले हैं जैसे कार ऑफ द डेकेड, बेस्ट कार ड्राइवन ऑल ईयर 2005 एट्सेट्रा, जिससे ये कार बहुत ही पॉपुलर बन गई है। नंबर 10 इज़ 2016 कोनिग्सेग रिगेरा। ये गाड़ी 2016 में रिलीज़ की गई थी। ये कोनिग्सेग का पहला हाइब्रिड मॉडल है। इसका स्पीड 255 एमपीएच है और इसका 0 to 60 एमपीएच परफॉर्मेंस है 2.8 सेकेंड्स। ओरिजिनली स्वीडन की ही है और इसकी प्राइस इंडिया में कम से कम 30 करोड़ है। इसका प्रोडक्शन 2016 से लेकर अभी तक चल रहा है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसका भी लिमिटेड प्रोडक्शन होने वाला है। द 11th वन इज़ 2007 SSC अल्टीमेट एरो। गाड़ी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार में शामिल है जिसका 2007 और 2010 के बीच में बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन किया गया। ये अमेरिका में बनाई गई है और सुपर कार्स में से एक बन चुकी है। इसका स्पीड 256 एमपीएच है और ये अपने स्मूथनेस के लिए बहुत फेमस है। इस गाड़ी से कई सारे स्पीड रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए गए हैं। द 12th वन इज़ 2019 बुगाटी कायरॉन स्पोर्ट। ये एक मिड इंजन हाइपर कार है और इस कार का स्ट्रक्चर बुगाटी के विजन ग्रैंड टूरिज्मो कॉन्सेप्ट कार से काफ़ी इंस्पायर्ड है। इस गाड़ी का नाम कायरॉन स्पोर्ट लुइस कायरॉन एक लेजेंडरी मोनाको ड्राइवर से रखा गया है। ये कार 261 एमपीएच जा सकती है जिसे ये बहुत इम्प्रेसिव बन चुकी है। ये ओरिजिनली फ्रांस से है और इसका पावर भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इसके प्राइस है 21 करोड़ और इसका 2016 से लेकर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग चल ही रहा है। द नेक्स्ट कार इज़ 2010 बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट। इस कार का टाइटल SSC अल्टीमेट एरो से ही लिया गया है। इस गाड़ी का स्पीड लाइटनिंग फास्ट माना जाता है। इसकी 268 एमपीएच तक क्रॉस करने की कैपेबिलिटी है और इसका भी फ्रांसी ओरिजिन है। इस गाड़ी का प्राइस $2 मिलियन है और इस गाड़ी का नाम रेसिंग ड्राइवर पेरी वेरन से रखा गया है। द 14th वन इज़ 2014 हेनेसी विनॉम GT। ये कार उन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स में से एक है जिसका सिर्फ 13 यूनिट्स ही प्रोडक्शन किया गया। 2011 से लेकर 2017 तक ही ये मैन्युफैक्चर की गई।
ये भी उन चुनिंदा अमेरिकन मॉडल्स में से एक है जिसका स्पीड 270 एम्पियर्स तक जा सकता है। The 15th one is 2017 Koenigsegg Agera RS। CCX की रेंज को रिप्लेसमेंट करने के लिए अगेरा इंट्रोड्यूस की गई। इस गाड़ी का स्ट्रक्चर बाकी कार से स्लीक और एस्थेटिक है। इसका स्पीड 285 एमपीएच है जिससे इसको कई अवार्ड्स मिले हैं। ये कार हाइपर कार ऑफ द ईयर भी अवॉर्डेड है। भले ही इसका प्रोडक्शन टाइम बहुत ही कम था, लेकिन इस कम टाइम में उसने एक अच्छा फीचर का प्रोडक्शन बना दिया जो बहुत सारे कार्स फॉलो करते हैं। द 16th वन इज़ 2020 Koenigsegg, जिसको ये कार बहुत ही यूनिक है और इसको सुपर कार भी कह सकते हैं क्योंकि ये सुपर से भी ऊपर के लेवल की कार है। इसका स्पीड 300 प्लस एम्पियच है और ये कार इतना कंफर्ट देती है और साथ में स्पीड और रेसिंग के स्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान देती है। इस कार का प्रोडक्शन 2020 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोविड के सिचुएशन से इनके बायर्स पर अफेक्ट हो सकता है। रेसिंग और बाकी कार स्पोर्ट्स भी स्टॉप हो गए हैं, इसकी वजह से इसके प्रोडक्शन पर असर भी हो सकता है। द 17th वन इज़ 2020 SSC फर्स्ट। ये कार स्पेशली डिज़ाइन की गई है उसी डिज़ाइनर से जिसने प्रीवियसली फरारी और मज़राटी डिज़ाइन की है। इसका नाम 2020 टुआट्रा भी है। ये अमेरिकन मॉडल है। इसका प्राइस $19 लाख 1000 है और इसका स्पीड 300 एम्पियच से भी बढ़कर है। इसका 0 to 60 एम्पियच टाइम है 1.9 सेकेंड्स, जो इसको बहुत ही एक्सेप्शनली फास्ट बनाता है। द 18th वन इज़ 2020 Hennessy Venom F5। ये एक अपकमिंग हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है जो ओरिजिनली एक अमेरिकन मॉडल है। ये उन हाइपर कार्स में से एक है जिसका स्पीड 310.7 से भी बढ़कर है। इसका प्रोडक्शन अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा स्पीड और अलग अलग फीचर्स देने वाली ये गाड़ी जल्दी प्रोडक्शन में आ जाएगी। द 19th वन इज़ 2020 Bugatti Chiron सुपर स्पोर्ट। इस कार की असेंबली फ्रांस में की गई थी और ये 2016 से लेकर अब तक प्रोड्यूस हो रही है। कार की 304.7 एम्पियर्स तक कैपेसिटी है। 2017 में इस कार ने फास्टेस्ट 0 to 400 km पर आवर एक्सेलरेशन टाइम का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इस गाड़ी ने 3.2 किलोमीटर का डिस्टेंस केवल 41 सेकेंड में कवर करके और भी काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। इस गाड़ी की कॉस्ट है $3.87 मिलियन। द 20th एंड द लास्ट वन इज़ 2020 Devil 16। ये एक ऐसी हाइपर कार है जिसने बुगाटी हैनेसे को जम के टक्कर दी। इसका पावर 5000 HP से ज़्यादा है जो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार का 1600 HP तक ही जा सकता है। उसका टॉप स्पीड 350 तक जाता है। इसका ओरिजिन UAE है, लेकिन इसके फीचर्स ने पूरी दुनिया भर में धूम मचाई है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक फ्यूचर हाइपर कार है जिसने एक नया लेवल ही सेट कर दिया है। तो ये तो थी हमारी 20 मोस्ट फास्टेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। अब आप ज़रा मुझे ये बताइए कि किसने सोचा था कि एक कार रेसिंग फिल्म जिसका बजट मुश्किल से $40 मिलियन है, जिसमें लीड रोल्स में ऐसे 2 एक्टर्स हैं जो स्क्रीन पर दिखते तो थे लेकिन सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में, दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक बन जाएगी। फास्ट एंड फ्यूरियस एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने अभी तक ऑडियंस को अपने अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस, लग्जरी कार्स और हाइस्ट से बहुत एंटरटेन किया है। इस सीरीज़ ने विन डीजल, पॉल वॉकर, मिशेल रॉड्रिगस की करियर को एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन क्या रीज़न है इस सीरीज़ को और एक्शन मूवीज़ से अलग जो बनाता है? वो है इस मूवी के कैरेक्टर्स। एंड फ्यूरियस के कैरेक्टर्स हमें इंस्पायर करते हैं टू बी समवन वी ऑलवेज वांटेड टू बी, चाहे डॉम हो, ब्रायन या फिर लेटी। वी जस्ट लव देम और कहीं ना कहीं हम भी ऐसी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं। लास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 2017 में रिलीज़ हुई थी और 2001 से ये मूवीज़ हमारे दिल में जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए आपकी मेमोरीज रिफ़्रेश करने के लिए ले चलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की दुनिया की अमेजिंग जर्नी पर। 2001 में आई द फास्ट एंड फ्यूरियस इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट थी। इस फिल्म ने फ्रेंचाइजी के 4 कैरेक्टर्स यानी डॉम, लेटी, मिया टोरेटो और ब्रायन इंट्रोड्यूस किए थे, जो बाकी सारी फिल्म्स में भी नज़र आते हैं। फिल्म्स की कहानी शुरू होती है जब LAPD ऑफिसर ब्रायन ओ कॉनर यानी पॉल वॉकर को एक अंडर कवर ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है इलीगल स्ट्रीट रेसर्स के पास, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो कौन है जो शहर में हो रही इतनी सारी ट्रक हाईजैकिंग्स के पीछे हैं। और वो स्ट्रीट रेसर है विन डीजल खुद, यानी डोमिनिक टोरेटो। डॉम इसके अलावा एक गैरेज और ग्रॉसरी स्टोर भी चलाता है अपनी बहन मिया के साथ।
अब अपने मिशन के लिए ब्रायन डॉम और उसकी गैंग का ट्रस्ट जीतने की कोशिश में लग जाता है ताकि उसे शहर में बढ़ती चोरियों का आइडिया लग सके। आफ्टर बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द फेंस, डॉम एंड ब्रायन की फाइनली फ्रेंडशिप हो जाती है। अब ब्रायन हिस्सा बन जाता है डॉम और लेटी लेड टीम में, जहां वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को यूज़ करता है रॉबरीज के लिए। ब्रायन बिकम्स लाइक अ फैमिली टू देम। लेकिन वो जल्द ही रियलाइज़ करता है कि वो दोनों साइड्स से तो नहीं खेल सकता है और डिसाइड करता है डॉम को सब सच बताने का। वो ऐसा करने ही वाला होता है तभी उसका सीक्रेट सबके सामने खुल जाता है। अब डॉम और उसकी टीम अपने बैग्स पैक करके शहर छोड़ जाने की तैयारी में लग जाती हैं। जाने से पहले ब्रायन और डॉम एक आखिरी क्वार्टर माइल रेस करते हैं, लेकिन डॉम को कस्टडी में लेने की बजाय ब्रायन अपनी कार की कीज़ उसे दे देता है एंड ही लेट्स डॉम एस्केप। ये कर तो दिया उसने, पर इसके बाद ब्रायन के साथ क्या होगा? कट टू द टर्बो चार्ज प्रील्यूड फॉर टू फास्ट टू फ्यूरियस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टू फास्ट टू फ्यूरियस सीरीज़ का अगला पार्ट है, लेकिन उससे पहले भी आई थी ये शॉर्ट फिल्म। तो अब ब्रायन के पीछे पूरे अमेरिका की पुलिस पड़ी हुई है। हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल पर उसी का चेहरा देखने को मिलता है। अब ब्रायन स्ट्रीट रेसिंग किंग बन चुका है और पूरी कंट्री में रेसेस जीता जाता है। पर उसकी विनिंग ट्रायल में रुकावट तब आती है जब ब्रायन की गाड़ी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन ब्रायन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो है ही नहीं, और इतनी सारी रेसेस जीत के बहुत पैसा तो उसने कमा ही लिया था, तो बस खरीद लेता है वो नई कार, पेंट इट अप एंड रेसेस जीतने में लग जाता है और पहुंच जाता है मियामी। अब 2003 की फास्ट एंड फ्यूरियस 2 में ब्रायन अंडरकवर कॉप से मियामी स्ट्रीट रेसिंग चैंपियन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब वो ल्यूडैकरस यानी तेज के साथ मिलकर अपने सारे कारनामों को अंजाम देता है। लेकिन इट ऑल कम्स टू अ हॉल्ट जब मियामी पुलिस डिपार्टमेंट ब्रायन की कार में इलेक्ट्रॉनिक हार्पून फायर कर देते हैं जब वो रेस में होता है। लेकिन एमपीडी सिर्फ ब्रायन को पकड़ने के लिए नहीं पकड़ती है, उनका एक और मकसद होता है इसके पीछे। एमपीडी एक डील रखती है उसके सामने, वो ब्रायन के सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा देगी अगर वो मियामी ड्रग लॉर्ड वेरॉन को पकड़ने में उसकी मदद करे। ब्रायन मान जाता है और फिर कांटेक्ट करता है अपने बचपन के दोस्त और एक्स कॉन रोमन को। रोमन का रोल टायरीज गिब्सन ने प्ले किया है। इस फिल्म में एक और नई एंट्री है और वो है एक्ट्रेस ईवा मेंडिस की, जिन्होंने एजेंट मोनिका फियोंटिस का रोल निभाया है। ईवा गॉस्ट राइडर और हिट जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी है। मोनिका की हेल्प से ब्रायन और रोमन वेरॉन को पकड़ने में सक्सेसफुल होते हैं। अब फाइनली ब्रायन के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर हो चुके हैं और अपनी आगे की जर्नी के लिए वो खूब पैसे भी मिल जाते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, राइट? पर अभी तो कहानी बस शुरू ही हुई है यार। फिल्म ख़त्म हो गई पर डॉम कहीं भी नहीं दिखा, ये क्या चक्कर है? इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। इस सब का जवाब मिलता है टोक्यो ड्रिफ्ट, नहीं उसमें नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ में अगली फिल्म भले ही टोक्यो ड्रिफ्ट हो, लेकिन इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सीधे 2009 में आई हुई शॉर्ट फिल्म लॉस बैंडोलेरोस हैंड लाइव्स में पहुंचना होगा। दरअसल फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी मूवी सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिलीज़ नहीं हुई हैं और फिल्म्स की कहानी को अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा आगे जंप करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी समझ गए ना? बाकी सब मियामी में थे तब डॉम और लेटी पहुंच गए थे डोमिनिकन रिपब्लिक, द टारगेट, एक गैसोलीन टैंकर ट्रक। लगता है डॉम पहली फिल्म से नहीं सीखे और फिर ट्रकर्स से पंगे लेने निकल पड़े। डॉम के क्रू में होते हैं टैगो, सेंटोस, लेटी, ऑफ कोर्स और हैन। वेट व्हाट? हैन डाइड इन 2006 टोक्यो ड्रिफ्ट। कुछ भूत वाला या पुनर्जन्म वाला एंगल तो नहीं है ना? इस मूवी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो टोक्यो के इंसिडेंट से पहले हुए थे, इसलिए हैन हमें दिखते हैं। स्टोरी पर वापस आते हुए मूवी से हमें ये पता लगता है कि डॉम को डोमिनिकन रिपब्लिक के लोगों से उतना प्यार है जितना उन्हें अमीरों से गैस चुरा के गरीबों में बांटने से। इसके बाद आती है 2019 में रिलीज़ हुई मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस राइड और डाई। लॉस बैंडोलेरोस में जिस हाइस्ट का हमें टीज़र दिखाया गया था उसी हाइस्ट से शुरू होती है राइड और डाई। डॉम, लेटी, हैन, टैगो एंड सेंटोस अच्छा खासा चंक ऑयल ऑफ चोरी कर लेते हैं डोमिनिकन लोगों में बांटने के लिए, लेकिन उनकी ये सेलिब्रेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती क्योंकि डॉम को पता है कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है और लेटी के भी अरेस्ट होने का खतरा है।
अब डॉम लेटी को तो कुछ होने नहीं दे सकता, तो उसे बचाने के लिए वो एक रात उसे छोड़ के चला जाता है अपनी अलग ज़िंदगी जीने के लिए। साथ ही ब्रायन अब एफबीआई के साथ काम कर रहा है और एक और ड्रग लॉर्ड ब्रैगा को ढूंढने के लिए लगा हुआ है। अचानक डॉम को पता चलता है कि लेटी की जान ले ली है ब्रागा के किसी आदमी ने। अब बदला लेने के लिए वो पहुंच जाता है लॉस एंजलिस। अब डॉम और ब्रायन बोथ गो अंडर कवर इन ब्रागा स्ट्रीट रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ब्रायन ब्रागा को पकड़ना चाहता है और डॉम ब्रागा को मारना चाहता है। अब अपने इस मिशन में उनकी मुलाकात होती है जिज़ेल से। जिज़ेल का रोल वंडर वुमन गैल गडोट ने प्ले किया है। अब डॉम और ब्रायन अपने कॉम्प्लिकेटेड पास्ट को पीछे छोड़ते हैं एंड दे टेक ब्रागा डाउन। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेक्स में डॉम को एफबीआई पकड़ लेती है और उसे 25 साल की जेल हो जाती है, 25 साल के लिए। फिल्म के एंड में ब्रायन, मिया, लियो और सेंटोस डॉम को जेल से भगाने के लिए आते हैं। फास्ट 5 एकदम वहीं से शुरू होती है जहां पर फास्ट एंड फ्यूरियस ख़त्म हुई थी। डॉम अपनी फैमिली के साथ जेल से भाग जाता है। वहां ब्रायन और मिया पहुंच जाते हैं रियो डी जनेरियो डॉम से मिलने के लिए। मीनवाइल ब्रायन ने ट्रेन से कार्स चुराना शुरू कर दिया है। अब पिछले 2 फिल्म्स की तरह इस फिल्म में भी ड्रग लॉर्ड रिटर्न्स, तो अनजाने में ब्रायन एक ऐसी कार चुरा लेता है जो ड्रग लॉर्ड रेज की होती है। रेज एक रुथलेस ड्रग लॉर्ड है जिसका सिक्का चलता है रियो में। डॉम, मिया और ब्रायन रियलाइज़ करते हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेज से पैसे चुराने की। इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि पूरी ज़िंदगी आराम से निकल जाए। अब इतने बड़े ड्रग लॉर्ड कि यहाँ चोरी करना 3 लोगों का काम तो है नहीं, तो वो बुला लेते हैं अपने पुराने फ्रेंड्स को और रेडी हो जाते हैं 100 मिलियन चुराने के लिए। लेकिन सिर्फ रेज नहीं बल्कि उनका अकेला ऑब्स्टेकल एंटर ल्यूक हॉब्स ड्वेन जॉनसन, एक एजेंट जिसे बहुत टाइम से तलाश है एफ फैमिली की। उनकी फास्ट एंड फ्यूरियस राइड में एक और मेंबर जुड़ जाता है और वो है रियल लाइफ गॉड ऑफ थंडर यानी क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ एल्सा पैटिकी, जिन्होंने रियो पेट्रोल ऑफिसर एलेना का रोल किया है। एलेना की आंखों में सिर्फ बदला है जो उस रईस से लेने को, क्योंकि उसने एलेना के हस्बैंड को मारा था। पूरी मूवी पैक्ड है डॉम और हॉब्स के दमदार फाइट सीन से, लेकिन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है आफ्टर रईस किल्स एवरी मेंबर ऑफ हॉब्स टीम। रईस से चुराने में डॉम और उसकी फ्रेंड्स सक्सेसफुल होते हैं और वो भी बिना किसी गलती के। हॉब्स उन्हें 24 घंटे का टाइम देता है सेलिब्रेशन के लिए और फिर शुरू हो जाती है मस्कुलर रैट और मस्कुलर माउस की रेस। फास्ट 5 की फैमिली अब मिलीनियर बन चुकी है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में। ब्रायन एंड मिया रेजिंग देयर सन रोमन और तेज के पास अपनी डम प्रैंक्स के लिए खूब पैसे आ चुके हैं एंड डोम हैज़ फाउंड न्यू लव विद एलेना। सब अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, राइट? लेकिन उड़ती उड़ती एक खबर आती है कि डॉम की एक्स लवर लेटी जिंदा है। लेटी फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्सप्लोजन में बच गई थी, पर अब वो सब कुछ भूल चुकी है और अब सिर्फ मूवी के विलन ओवन शॉन यानी ल्यूक एवांस के इशारों पर चलती है। बहुत सारी रेसेस और एक्शन सीन्स के बाद डॉम फाइनली लेटी को कन्विंस कर लेता है कि शॉ उसे मैनिपुलेट कर रहा है और उसे टीम में फिर से ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है। लेकिन लेटी अकेली डबल एजेंट नहीं है। हॉब्स की पार्टनर राइली सीक्रेटली शॉ के साथ काम कर रही होती है और हॉब्स को धोखा देने का सही मौका ढूंढ रही होती है। अब शुरू होती है सबसे जॉ ड्रॉपिंग फाइट बिटवीन फास्ट फैमिली एंड शॉ। फास्ट 5 को बचाना है शॉ को सीक्रेट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी चुराने से। शॉ तो रोक लिया जाता है, लेकिन इस फाइट में जिज़ेल हैन को बचाने के लिए जान दे देती है अपनी। हार्ट्स ब्रोक व्हेन दिस सीन हैपेंड। फास्ट फैमिली के सारे क्राइम्स को गवर्नमेंट माफ़ कर देती है और वो फिर से वापस एलए चले जाते हैं। अब वापस आते हैं उस फिल्म पर जिसे छोड़ा था, टोक्यो ड्रिफ्ट। गिज़ेल की डेथ के बाद हैन चला जाता है टोक्यो में स्ट्रीट रेसिंग के लिए। ये फ्रेंचाइजी एक लौती ऐसी फिल्म है जिसमें ना तो विन डीजल और ना ही पॉल वॉकर है। मूवी की स्टोरी हाई स्कूल गाय सीन बॉसवेल की अराउंड है, जिसे टोक्यो अपने फादर के साथ रहने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि सीन के स्ट्रीट फेसिंग का शौक की वजह से यूएस में तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। टोक्यो में सीन मिलता है हैन से। हैन सीन को ड्रिफ्टिंग कैन के नए नए तरीके सिखाता है, यहाँ तक कि उसे कार भी लोन पर दे देता है। और ये सब डीके यानी ड्रिफ्ट किंग को हराने के लिए, जो क्राइम बॉस यजुका का नेफ्यू है। हैन की ट्रेनिंग तब इंटरप्ट होती है जब डीके और उसके अंकल हैन के गैराज में अटैक कर देते हैं।
उसी चेज़ में हैन को एक मोटरिस्ट बहुत बुरी तरह से हिट करता है और उसकी कार तुरंत बॉल ऑफ फायर में कन्वर्ट हो जाती है। सीन अपने टीचर की डेथ का बदला लेने के लिए डीके को चैलेंज करता है, जिसमें वो डीके को हरा देता है और नया ड्रिफ्ट किंग बन जाता है। लेकिन फाइनल सीन में डोम वापस आता है सीन से रेस करने को और उसे बताने के लिए कि हैन वॉज फैमिली। अब सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो आता है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 का पोस्ट क्रेडिट सीन। उस सीन में ऑडियंस को वापस ले जाते हैं हैन की ट्रेजिक डेथ पे। लेकिन सीन में एक और मिस्टीरियस आदमी जुड़ गया है जो हैन की पूरी चेज़ को पुलिस स्कैनर पर देखता है। वो स्ट्रेंजर है जेसन स्टैथम, जो डॉम को फ़ोन करता है एक मैसेज के लिए, डोमिनिक टोरेटो यू डोंट नो मी बट यू विल। ये कहते ही हैन की कार एक्सप्लोड हो जाती है और सीरीज़ के सारे पीसेस एक साथ जुड़ जाते हैं। अब हम सब पहुंच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन फ्यूरियस 7 पर। फैमिलीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फास्ट एंड फ्यूरियस यूनिवर्स का, लेकिन बैड गाइज हैव अ फैमिली टू। और इस केस में ओवन शॉ का एक मीन ओल्ड ब्रदर डेकार्ड यानी जेसन स्टैथम की एंट्री होती है। डेकार्ड ही वो आदमी है जिसने हैन को मरवाया था। हैन की डेथ की न्यूज़ सुन के फास्ट फैमिली ढूंढने लग जाती है डेकार्ड को। गॉड्स आई एक हैकिंग टूल जिससे हर किसी को ढूंढा जा सकता है, उसकी हेल्प से वो शॉ कहाँ है पता लगा लेते हैं। फिर आती है बहुत सारी फाइट सीक्वेंसेस, जिसके बाद फाइनली फास्ट फैमिली शॉ को जेल भिजवा देती है और हैन की डेथ का बदला ले लेती है। पॉल वॉकर की रियल लाइफ डेथ की वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेते हुए दिखाया गया है एज ही राइड्स ऑफ इनटू द सनसेट विद मिया एंड देयर सन। इसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस यूनिवर्स का एक स्पिन ऑफ हॉब्स एंड शॉ भी रिलीज़ हुआ था। 2001 में मूवी का 9th सीक्वल रिलीज़ होने वाला है एंड 10th सीक्वल इज़ नाउ इन द मेकिंग। तो ये थी फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में कुछ खबरें, कुछ कार्स के बारे में। ऐसी ही कुछ नई नई इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ के साथ। मैं निशी तनवर बॉलीग्राड स्टूडियोज़ से आप सभी को बाय कहती हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।